Dear students, in this video I will tell you about the domain, how to find the domain and range of the real valued function. Real valued function means till now we have read about the function n to n, means like this: n to n, natural to natural, r whole number to natural number, r real number to natural number, r real to real, जो भी है. But now in this case we will study about only real valued function. मतलब domain and range both will be the real value, means real valued function. That is why it is called the real valued function. So how to find the domain and range of the real valued function? For this there are different types questions. First type question, if you have the rational function. What is the rational function? किसी भी फंक्शन को रैशनल नहीं कहते. जैसे अगर हमारे पास 4 माइनस एक्स बाई 3 है, दिस इज नॉट द रैशनल, दिस इज द अरिथमेटिकल. इन अरिथमेटिक जो क्लास 8-9 में पढ़ते हैं कि बाई 3 है, 2 बाई 3 है, 4 बाई 3 है, दैट इज द रैशनल. But in the algebraic expression, if you have the numerator as the algebraic expression and denominator as the digit only, means the numerical value, this is not the rational, this is polynomial. Rational means the numerator and denominator must having the variable. तो जैसे यहाँ है 4 माइनस एक्स है, 2 प्लस एक्स है, तो दिस इज द रैशनल फंक्शन. फॉर द रैशनल फंक्शन व्हाट इज द डोमेन? हमने डोमेन बताया. व्हाट इज द डोमेन पहले बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में भी. डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स. बाय एनी मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स. तो हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स? एज यू नो, इन द रैशनल फंक्शन या कहीं पे भी कोई भी चीज एग्जिस्ट, रियल वैल्यू वही होगी जो इन्फिनिटी नहीं होगी. मतलब सारे नंबर, ऑल द नंबर्स विच यू नो, that is called real number. अब इसमें infinity किस केस में आ सकता है? In which case you will get the infinity when the denominator is 0. अगर denominator 0 हो जाता है तो ये infinity आ जाएगा. तो denominator को 0 नहीं करना है, तो this is the case. तो अगर हम इसको लें for domain, इसको df से डिनोट करेंगे. for domain the denominator या for domain df function fx must be real. अब ये रियल होना चाहिए. तो जब रियल होना चाहिए तो 2 प्लस एक्स कैन नॉट बी 0. इट मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू -2. सिर्फ यही एक नंबर है जिसपे ये 0 देगा और कोई नंबर नहीं. मीन्स x इज इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, -3, -1.5, 2, 6, 7, मतलब negative, positive, anything, decimal, anything, but -2 if you will put here, then it will be 0. Therefore x is not equal to. So what is the domain? So domain of the function all real number, क्योंकि हम सिर्फ -2 को छोड़ेंगे. -2 इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखे. इसका मतलब होता है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट, ये माइनस साइन मतलब एक्सेप्ट -2. तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द रेंज मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx. हमने पहले भी बताया. और इस fx को अगर हम y ले ले तो इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y. सिमिलरली y शुड ऑल्सो बी द रियल नंबर. जैसे x हमें ये चाहिए कि ये सिर्फ एक रियल नंबर होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए. इन द सेम केस y आल्सो शुड बी द रियल नंबर. तो फर्स्ट यू लेट दिस इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स. फॉर रेंज हम इसमें लिखे दे रहे हैं फॉर रेंज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स. अब इसको कैसे सॉल्व करें? बट दिस फॉर प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग, मतलब कि ये डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द फंक्शन. इस फंक्शन में जिसमें लीनियर जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर हो, ऊपर भी लीनियर है, मतलब कि यू विल नॉट हैविंग द
quadratic means x to the power 2 or x to the power 3, then you have to do by this way. For range, domain के लिए तो ठीक है, but for range you have to apply only one method, cross multiplication. If you have linear expression in numerator and denominator both, तो divide cross multiplication, you will have xy is equal to 4 minus x, and then all the x you take in left hand side and y in right hand side. So x is common, y plus 1 is equal to 4 minus 2y, then x is equal to 4 minus 2y upon y plus 1. Now जैसे y अभी in terms of x लिखा था तो हमने कहा denominator cannot be 0. Similarly here the x written in the terms of y, so denominator for the real number, the denominator cannot be 0. तो इसमें लिखेंगे for real value the y plus 1 is not equal to 0. अगर ये 0 होगा तो infinity देगा. Now y is not equal to minus 1, so what will be the range? रेंज हमने फिर बताया कि सारे रियल नंबर -1 सिर्फ नहीं रखेंगे, बाकी ऑल द रियल वैल्यू -1. दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. तो डोमेन एंड रेंज ऑफ द लीनियर रैशनल फंक्शन, हम उसको वर्ड जोड़ रहे हैं रैशनल फंक्शन के आगे पहले लीनियर का मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ शुड बी द लीनियर एक्सप्रेशन. लीनियर का मतलब कि y टू द x टू द पावर 1 में हो, मतलब देयर इज नो पावर मोर देन द 1. तो by this way you can solve the question. This is the first type only. There are so many types of the questions. Now second time, if you have the under root, domain and range you have to find for the under root. So for the under root you have to find the domain and range. Before that domain and range of the quadratic one, quadratic मतलब कि x स्क्वायर में हो, तो in this case what you have to do, find domain and range of fx is equal to x square upon 1 plus x square by this way, and you have to find the value domain and range. तो अभी हमने बताया कि डोमेन एंड रेंज, डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स एंड रेंज मीन्स वैल्यूज ऑफ वाई. वाई मतलब होता है कि पूरा एफ एक्स, मतलब पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है. इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन, अच्छा ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, लिखा रहेगा दिस रियल वैल्यूड फंक्शन FR2R लिखा रहेगा. एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैन यू गेट 0 इन द डिनोमिनेटर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स? Can you get the 0 for any value of x in the denominator? No, you cannot get. Why? It is positive and x square always a positive number. कोई भी जो स्क्वायर क्वांटिटी होती है ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. इट मीन्स दिस कैन नॉट बी 0. जब ये 0 नहीं हो सकता, यू विल नॉट गेट इंफिनिटी. इट मीन्स ओनली all the real numbers are the values of x which satisfy this relation. मतलब ये हमारा x की कोई भी वैल्यू ले, हमें कुछ ना कुछ नंबर जरूर आएगा, कोई रियल वैल्यू जरूर आएगी. तो फॉर द एक्सप्रेशन द x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑलवेज ए real number for any values. अभी ये एक चीज गलत थोड़ा सा है, दूसरी तरीके से लिखना चाहिए इसको, हमें दूसरी तरीके से लिखना है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0 फॉर एनी रियल number या real for any value of x.
सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रखो इसमें आ जाएगा। बट फॉर द रेंज व्हाट यू हैव टू डू फॉर द रेंज, फॉर द रेंज देयर इज ए, अभी हमने जैसे बताया कि उसमें ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, यहां पे क्या है, द न्यूमरेटर आल्सो द क्वाड्रेटिक मींस स्क्वायर क्वांटिटी एंड डिनोमिनेटर आल्सो द स्क्वायर क्वांटिटी एंड देयर इज नो एक्स, ये मींस नो अदर पावर ऑफ द एक्स, ओनली द स्क्वायर इज देयर। तो हाउ टू डू, तो सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या इसमें कोई निगेटिव वैल्यू मिल सकती है आपको? कभी x की कोई वैल्यू रखने पर तो क्या निगेटिव वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी, निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। जब निगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी इट मींस इट इज ग्रेटर देन 0, और 0 भी नहीं मिलना है। 0 तभी मिलेगा जब x की वैल्यू यहां पे 0 आएगी तब, तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0। अब हम अगर y की बात करते हैं कि हाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले ले तो ये माइनस वाई, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इन दिस केस अब हमें पता है कि ये जो वैल्यू है यहां पे एक्स स्क्वायर जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर? अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो y अपॉन 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई को उधर नहीं ले जा सकते हैं, इसको हम ऊपर नीचे पहले सेम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऐसे मतलब सेम नंबर से। डिनोमिनेटर मस्ट बी, अगर कोई इनइक्वेशन आता है, इनइक्वेशन साइन, और डिनोमिनेटर हमारा कुछ कोई भी फैक्टर है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देन यू कैन टेक फ्रॉम दिस साइड टू द राइट हैंड साइड। तो जैसे 1 माइनस वाई था सिर्फ यहाँ पे, तो ऊपर नीचे 1 माइनस वाई से तो 1 माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया। अब ये उधर चला जाएगा तो y माइनस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये कैंसिल भी हो जाएगा। द नंबर शुड बी पॉजिटिव इन द डिनोमिनेटर। अब एक नंबर 1 माइनस वाई है, ये पॉजिटिव नहीं है कि है ये नहीं पता, बट 1 माइनस वाई 2 टाइम्स लिख दिया गया यानी होल स्क्वायर हो गया, देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड यू कैन टेक। तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि when we multiply by the negative sign both the sides in the inequation then the sign of inequation change। इसीलिए इसको पॉजिटिव बनाया जाता है कि ये इनइक्वेशन का साइन चेंज ना हो। ये हमें कंफर्म नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव है। और साथ में ये भी बताया गया था कि कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएगा अगर माइनस साइन से। अच्छा, इस केस में हमारे पास में y जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो y पॉजिटिव होना चाहिए तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था तो लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ इन दिस केस हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। इसमें वैल्यू ऑफ y अगर हम इज इक्वल टू साइन लेके चले तो एक 0 है एक 1 है। अब y की 2 वैल्यूज हैं, एक y इज इक्वल टू 0 है, एक y इज इक्वल टू 1 है। तो क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिखते हैं कि y लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर ये लेस देन आर इक्वल टू साइन है तो y की वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगी, यानी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ द एक्स वाई इन द क्वाड्रेटिक या कहीं पे भी कैसे निकालते हैं अगर इन इक्वेशन है तो। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा कि लीनियर इन इक्वेशन के बारे में, बट क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन या फैक्टर्स मोर देन 1 फैक्टर्स आर देयर, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स या वाई। तो y यहां पे अगर इस तरह से कुछ आ जाए लेस देन आर इक्वल टू 0, 2 फैक्टर्स यू हैव, देन डायरेक्टली यू कैन राइट द y लाइज बिटवीन द स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर राइट हैंड साइड में, स्मॉलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड। अब एक चीज देखनी होती है
कि जब हमने ये किया था y/1 - y, यहां पे ये इंफिनिटी भी तो दे सकता है व्हेन जब हम y = 1 पुट करेंगे तो ये इंफिनिटी देने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को हमें नहीं लेना है। जब 1 को नहीं लेना है तो ये साइन हटा देते हैं। हमने पहले कुछ बताया होगा कि वो ब्रैकेट्स के बारे में कि जब ब्रैकेट का मतलब ओपन ब्रैकेट जो मतलब होता है वो ये है और बिग ब्रैकेट का मतलब ये है। मतलब हम जब उसको इंक्लूड करते हैं तो उसमें बिग ब्रैकेट यानी इक्वल साइन लेते हैं और जब नहीं इंक्लूड करते हैं तो उसको हम ओपन ब्रैकेट में लेते हैं। तो 1 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऑल द रियल नंबर्स वी आर टेकिंग फ्रॉम बिटवीन 0 to 1 बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो बाय दिस वे you can find the domain and range of the two types. First type, only the linear expression in numerator and denominator. Second type, only the power of x as 2 in the numerator and denominator, no other power. Then the next video I will tell you the other things. Thank you.